humble submission. No. Don't make a humble submission, madam. Just undoubtedly sir, आपकी डायरेक्शन के बाद ही हमको बहुत सारी चीजें क्लिक कर पाते हैं. अच्छा मैडम, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आपके लिए सहारा दें कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है? मैडम जरा आप जरा ध्यान से बोलिएगा, मैं अभी सेक्शन 36 ओल्ड सीआरपीसी पे आने वाला हूँ. अगर आप लोगों ने मात्र एएसआई या एसआई से सैल्यूट खाने के लिए वर्दी पहनी हुई है, देन फाइन, मेक अ स्टेटमेंट, आई विल नॉट पुट एनी फर्दर क्वेश्चन टू यू. आंसर चाहिए मुझे मैडम. आप क्या हमें धमकाने के लिए बैठे हैं कि साहब एनएसजी देख रही है, एनआईए देख रही है? अरे आपको नहीं देख रही क्या? और अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं उनकी वो भवन से, तो आप हमें कैसे धमका रहे हैं? देखिएगा अपनी एक कैफियत डायरी की, उसमें पूरी कैफियत में कौन से वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है. दिखाइए जरा कैफियत मैडम को, ऊपर की सेकंड पेज. और आपके काउंसिल हमेशा स्टार्ट करते हैं, सर एनएसजी हैड investigated, NIA has investigated. What you people are doing? It's a very unusual case. It is unusual case, right? For what the senior police officers are sitting. You are 110% right. On the last day, when your so-called IO he appeared, my first reaction after looking at him was that he will not be able to investigate at all. Because I know it requires some sort of expertise and intelligence, and the blank face which he was having, my first reaction was, ये कुछ नहीं कर पाएगा. Unfortunately, so-called senior police officers who are under duty as per section 36 to give direction to the subordinates are equally at the same level. हाई कोर्ट से जब तक क्वेश्चन मार्क्स नहीं उठेंगे, you people will never woke up. That's true, sir. That's true, sir. That's true. Is it not an alarming situation? It is, sir. It is, sir. But my humble request. But one thing is clear, madam. You are not trying to hide your inefficiency. Sir, I'm just... But therefore, I will not record. Therefore, I will not record anything. उनको पता चल जाए कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है, अब तो कन्विक्शन हो नहीं होना है, चाहे कुछ भी कर. राइट? क्योंकि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कैसा करना है ये कोर्ट से पूछते हैं और कोर्ट करवाती है इन्वेस्टिगेशन. आप हम लोगों की पोजीशन को मैलाइन करने के लिए क्यों तुले हैं, which is otherwise also not expected from the court. I have not said it is not the duty of the court. Even it is not expected from the court either to speak against you or against the defense. आपके एसपी को यह समझ में नहीं आता है कि ये आदमी इस लायक नहीं है. मैं उस आदमी की एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. You have also realized that this matter requires some sort of specialization. It cannot be done. Application internally, departmentally also, sir. We ask. I am least concerned in what manner the investigation is to be done. Only after looking at the orders of the court, if your department has woken up कि नहीं यार ये तो कुछ मैटर है और कोर्ट एनआईए और एनएसजी के नाम से डर नहीं रही है. Sir, we are trying कि ये investigation is on and we are asking from so many other agencies also because it's a question of explosive. तो जब explosive की बात आती है सर तो government agencies के अलावा तो कोई और कर नहीं रहा है इसमें. So हम देख रहे हैं लेकिन सर अगेन जैसा मैडम आप कुछ नहीं देख रहे हैं. We are trying actually. क्या ट्राई करेंगे? जब तक हमने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास नहीं किया बेल का, तब तक आप लोगों को तो लगा था कि हमने कह दिया है कि इनको अंदर कर दिया तो कोर्ट तो अब अंदर करेगी और एनएसजी का नाम देख के तो बिल्कुल ही डर के हमारे अंदर कर देगी. मैडम आप लोग डरते होंगे, एटलीस्ट हम नहीं डरते. NSG sir is for just rescue. Why every time it is being underlined by your IO? Just wanted to attract the attention of the court. And what about the police department? Actually, Madam, I am not concerned about NSG NIA. If you feel that if the matter has been handled by NSG also, therefore it is a serious matter, then what about you? Tell me. I am asking that question to you, not why you are telling me that it has been done by NSG also. NSG come just for rescue. Fine. Why you are putting that line with the underline
वर्ड्स के साथ ये देखिए, और आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कोर्ट कि साहब बहुत सीरियस मैटर है। वो तो मैं थोड़ा सा लाइटर रखने में कहता हूँ कि डरा रहे हैं। आपका ये यू आर एक्सप्रेसिंग इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, राइट? नहीं सर, मैं अच्छी बात है मैडम, अपना बिहेवियर बता दीजिए। आपको सीनियर अफसरों को कुछ नहीं मालूम है, आपके आईओ को कुछ नहीं मालूम है। कोर्ट जब ऑर्डर करती तब आप जागते हैं। आप कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्दर हम भी आपको डायरेक्शन दें कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। तो मैडम एक 2 लाइन का रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिख देते आप? If you are putting a question mark to your ability, then give way to some other. सर दैट लास्ट हुआ सर उस दिन। मैडम कुछ भी हुआ हो, ऑफेंस हुआ है बस, दैट इज ऑल। सर कैन आप कुछ नहीं पकड़ पाए अभी तक। एग्जैक्टली सर, वी आर ट्राइंग बट क्या ट्राइंग, बताइए ना क्या क्या किया, मैं आपको बोला। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सर क्या हुआ जब वो ब्लास्ट हुआ है सर, तो उसके बाद में एनआईए और एनएसजी इज नॉट कॉल्ड बाय आवर डिपार्टमेंट, दैट वाज देयर डिस्क्रिप्शन टू कम। उनको मालूम था कि इनएफिशिएंट पुलिस है। उसको देखते सर सेल्फ उन लोगों ने जो कोई प्रॉब्लम नहीं। and we are not supposed to like question them, so we are not asking any question from them. That's an agency. Madam, I have not repeatedly said about NSG NIA because And I have said repeatedly because you people are trying to project again. that's not intention at all, sir. Madam, please read out that KFA. Sir, I'm sorry if it is so. Why sorry? On one hand, you are saying that you are not concerned with NSG NIA and they had come on their own. We are not supposed to ask them. They are not supposed to grill you. Eh? That discretion is not in district level officers, sir. Actually, I'm least concerned. It is your internal matter. Whether you are answerable to them or not, it is none of my headache. Don't tell me. so एक तरफ आपके लिए सो कॉल्ड ड्रामा करना कि बहुत सीरियस है, दूसरी तरफ आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करना है। sir, we are very much aware, sir. क्या क्या किया मैं पूछ तो रहा हूँ मैडम। Sir, जो blast हुआ या देना या सीआरपीसी ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, पुरानी सीआरपीसी दीजिएगा जरा मैडम को। सर मैं ओएफके और एयरपोर्ट के बारे में बताना चाह रही थी, जो जिनके पास हमने कम्युनिकेशन किया था सर। मैडम फॉरगेट अबाउट एनआईए एंड एनएसजी। नहीं सर, एनआईए नहीं बोल रही मैं, ओएफके सर जो। हाँ तो इसका इसलिए हम दोनों छोड़ देंगे। हमने जो है सर, जहाँ से हमको सस्पेक्टेड रिकॉर्ड जगह लगा। कोई बात नहीं मैडम, आपको ओएफके ने कह दिया कि क्रेटर बड़ा है, likely to be a blast of a bigger bomb. समझ में आया सर? सुनिए सुनिए, likely to be a blast of a bigger bomb. तो आप लोग शांत होकर बैठ। मैडम then point out what steps you were taken by you. आपके सिर हिलाने से at least I will not get pleased. आप तो ये बताइए किया क्या आपने उसके बाद, और वो जरा लेटर जरा जोर से पढ़ दीजिएगा, whether it was an authoritative letter or it was just an impression of the authority who had signed that. ऐसा लगता है कि वो चूंकि क्रेटर बड़ा हुआ है तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा बॉम्ब होगा, और इसलिए ऐसा लगता है कि जो हमने सप्लाई नहीं किया। नहीं सर, एक जो बीडीएस का टीम का एक रिपोर्ट है सर, वो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट को क्लियर कर रहा है सर। उसके बाद जब वो एक्सप्लोसिव क्लियर हुआ था सर, तो वी हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट 2 मेजर एजेंसी जिस पे हमारा डाउट था। एक आमना बैतूल में है सर, और दूसरा अपना ओएफके है सर जो बैतूल। दोनों से बात करके दोनों की एसओपीज मंगाई थी, और उस एसओपीज में दे मेंशन कि अगर हम ये दे रहे हैं तो सामने वाले का भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो हमको अगर उसमें कोई ऐसा एक्सप्लोसिव हुआ तो वो रिवर्ट करेगा। दैट इज द उन्होंने क्या रिवर्ट किया मैडम, सर ये जरा बता दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हमें रटे हुए हैं केसेस, और आप लोग को तो जो हुआ अंदर ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज, अब आप लोग तो मजे लेते हो दफ्तर में बैठ के। नहीं दिखा वो एफके का लेटर निकाल लीजिए जिसमें लिखा है कि लुकिंग टू द साइज ऑफ द क्रेटर, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जो कि हमारे द्वारा सप्लाई नहीं किया गया है। तो ये ऐसा लगता में उसके बाद आप शांत हो गए। सर वी रोट मैडम प्लीज पॉइंट इट आउट फ्रॉम द डायरी। मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, आप वॉलंटरी आए हैं। लेटर वाला निकालिए जो अभी लिखा है।
मुझे 1 जुलाई या 2 जुलाई जब मैंने बेल दी है उसके बाद के लेटर्स नहीं देखने, मुझे उसके पहले के देखने हैं, ताकि जो मैं बार बार जबलपुर पुलिस की एफिशिएंसी को क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ताकि अब आपके मुंह से भी सुन तो चुके हैं कि साहब ये तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है। बताइए सर आपने क्या लेटर दिए? जैसे सर हमने एक लेटर पहले लिखा था जिसके क्या है मैडम? एमएसटीसी की साइट को लिखा था सर, तो मैडम साइट से हमें मतलब नहीं है, मैं ओएफके की बात कर रहा हूँ। Yes. मतलब एक्सप्लोजिव से रिलेटेड तीनों ही जगह बात हो रही है सर। बहुत अच्छे किया ना आपने। राजीव रंजन का ओएफके से आपके पास जब आ गया है, और आमला वाला भी पूछूंगा मैं, उन्होंने तो कह दिया कि हमने सप्लाई नहीं किया है, आमला ने तो सीधा सीधा मना कर दिया। दोनों ही यूनिट्स मना तो कर रही है, लेकिन वो देखना तो पड़ेगा। हम मैडम देखना पड़ेगा तो जगाना तो हमें पड़ रहा है, उसकी बात क्या कर रहे हो? सर इसमें डिनाई नहीं सर। प्रॉब्लम ये है कि आप डिनाई तो करिए, तब तो हमें लिखने में मजा आएगा। लेकिन ये है सर कि वी आर ट्राइंग, ये मैं कैसे अच्छा नहीं कर रहा है मैडम, सॉरी, डोंट गिव अ सर्टिफिकेट टू योरसेल्फ। जस्ट वांटेड टू शो यू देयर आर नो प्रॉब्लम। इससे आप क्या समझते हो मैडम? सर आई फील दे बोथ आर रिस्पांसिबल। क्यों? बिकॉज सर एक्सप्लोजिव के लिए तो परमिशन ही नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ परमिशन। ब्लास्ट तो एक्सप्लोजिव तो खरीद ही नहीं सकता कोई। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लाइसेंस और एनीथिंग। सो Forget about the person who has purchased. I am talking about the person who has sold or auctioned. आपका कहना है there is a provision in the SOP, therefore they are above everything. No, just wanted to know कि they both are responsible. Wanted to know why both are responsible. So explosive license के साथ भी can't sell and purchase. अच्छा, तो मैडम ये ज्ञान आज क्यों आ रहा है? वो भी जब मैंने आपके एसओपी को क्रिटिसाइज कर दिया, तब आप समझ गए कि इसका कुछ तो आंसर है। स्क्रैप के नाम के ऊपर ओएफके अगर एक्सप्लोजिव बेचता है तो अकॉर्डिंग टू यू दे आर exempted from any criminal prosecution. This is what the what the attitude of the Jabalpur police. Then why you are referring to the SOP? वो तो जब आपने देख लिया कि यार हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो अब आपने वो तुरंत उसका फिर समझना शुरू किया। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट मैडम। जबलपुर की पुलिस को जगाना पड़ता है, ना तो आप फरार लोगों को पकड़ पाते हैं, ना आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं, और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और आप हमको एसओपी का वो कंडीशन दिखा रहे हैं कि दैट ओनली द परचेजर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। एक लाइव डेटोनेटर, लाइव एम्यूनिशन अगर उन्होंने स्क्रैप में बेच दिया, whether the purchaser would be responsible. उसके लिए भी आपको यहाँ कोर्ट में खड़े होकर आपको समझना पड़ रहा है। That is, tell me about the bail. Sir, we are doing investigation and. Madam, what investigation was done prior to my order? That's true. That's true. That's true. Nothing was done. Still, you are of the view that it requires a specialized investigation, and the Jabalpur police is incompetent. Because even the additional SP was required to inform that immunity clause will not exempt the seller in case if a live detonator or a live ammunition is sold by them. मैडम दिवाली पे तो पटाखों की दुकानों को आप लोग उठा उठा के बंद कर देते हैं। सर लेट ही सही, लेकिन कार्रवाई करने की कोशिश। हाँ लेट नहीं मैडम, जब आप लोग के कान में, अरे जब आप लोग जब आप लोग के कान में जब तक ढोल नहीं बजाएंगे तब तक आप लोग तो जाग नहीं रहे हो। Now, please make a statement. I am least concerned about the investigation. Make a statement. What are the reasons for keeping him behind the bar? Eh? No, otherwise I will record each and every statement made by her. Fine. If you people do not know how to investigate the matter, if your senior officers are not in a position to
Even they are trying to mislead the court by misquoting the provisions of SOP with the intention to give clean sheet to the supplier. Whether supplier could have, I don't know what the reality is. When the blast took place? 25th of April. 25th of April. So even after three months, you are not in a position whether it was a planted bomb, whether it was an accident, or it was a supply or sale of a live ammunition. Nobody knows. NII आई है साहब, NSG आई है, वो भी बेचारे शर्म से मुंह झुकाएंगे अपना. Yeah, fairly some. Then why he should be kept behind the bars? इतना आंसर कर दीजिए ना. I am talking about the life and liberty. Please answer that. बस इतना सा बता दीजिए. What are the reasons for you to oppose the bail application? बस इतना सा बता दीजिए. अब आपकी मर्जी है, आपको जो करना करिएगा. No, हमको लिमिटेड चाहिए नहीं. हमको लिमिटेड चाहिए नहीं. हमको लिमिटेड आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए. जो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस मिस्टर खरे ने डे 1 पे बताया, आपको क्या लगता है कि मैंने डायरी क्या बिना सेटिस्फाई किए करवा बुलवा ली थी? इसके सिर्फ खरे साहब अपीयर हो रहे थे इसलिए डायरी बुला लो. My first question to him was that what is the change in circumstance? Why you have moved an application within a short span of period? His submission was, since this court has stopped putting questions, therefore he was not aware of the fact that non-filing of a registration by an institution may go against him, and therefore he relied upon Annexure P7, which according to him, he is also an authorized person to deal with the scrap of fired ammunition. Is it not a change circumstance? Please argue. Because his primary contention is that it is the change circumstance. My observation was that a licensee cannot authorize a non-licensee. So what cannot be done directly, it has been done. Now he has come up with a case that he is also a licensee of fired ammunition. Slight difference. Present applicant was having a license from the OSK. Sir, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जो सेकंड जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन फाइल किया है वो एप्लीकेंट का नहीं है, उसके साथ उसका है एग्रीमेंट किया इनके साथ. जी, राइट. that is. क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ओनली अ लाइसेंस होल्डर और a registered person can deal with the scrap of the fired ammunition. एंड आप रजिस्टर्ड थे, मतलब एप्लीकेंट रजिस्टर्ड था, इसने अपने नाम पे लेके अनरजिस्टर्ड को डील करने दे दिया, which is prohibited under the law. It was done by him. Now he has come with a case that no, the person in whose favor the agreement was executed is also a registered and license holder. He is also equally competent to deal with the scrap of fired ammunition. Is it not a change circumstance? इतना सा पहला क्वेश्चन. It is a change circumstance. Change circumstance. My submission to that is that the license of the procurement is from the MSTC. MSTC is an agency जो सारे मैंने आपसे पूछा फिर इनका जो फिर उसने ये जो 3-4 लाइनें पहले पैराग्राफ में लिख रखी हैं, उसने क्यों किया? वो क्यों एक अनऑथराइज्ड आदमी को डील करने के लिए परमिशन दे दी? ये हेयर्स वर्ड. I will not ask this question to madam, क्योंकि she may not be able to answer that precisely. Hairs का मतलब कब होता है? Hair कब पिक्चर में आते हैं? After the death of a person. Why the word hair has been used? मतलब वो लाइसेंस होल्डर मर भी जाए उसके बाद भी उसका खानदान उठा सकता है. They are happy. The police is very happy. No. मुझे investigation से I am least concerned. I am not supposed to supervise the investigation. So whatever I am putting, that is with a view to decide the bail application. If you are happy in giving clean check to one institution, if you are happy, तो फिर आप कैसे अपोज कर रहे हो जिन्होंने इनको बेचा? बस इतना बताओ मेरे को. I only have a document
only after passing of the order in the earlier bill, they have issued a letter to the OMK to give the details of the last 5 years or whatever the material has been sold on उससे auction. पहले नींद नहीं खुली थी, उससे पहले सीनियर अफसरों को पता नहीं था कि कॉम्पिटेंस और इट इज देयर ड्यूटी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स, उनको तो वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने होते हैं ना सर। इन्वेस्टिगेशन तो एसआई के लेवल का आदमी का काम है। I will fairly submit केवल एक लेटर लिखा गया था, एक OFK। हाँ हाँ, सीनियर ऑफिसर्स का रोल पे आ जाओ, उनको तो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने हैं। आम आदमी मरता है, उसका धड़ गायब हो जाए, हाथ मिले, एसपी को क्या लेना देना। जाओ बेटा उस आदमी के घर में देखो खाना बन भी रहा है कि नहीं। आपको तो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने हैं, आपको तो इन्वेस्टिगेशन देखना नहीं है, सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस इशू करने नहीं है। मैडम खुद कह रही हैं कि मैंने उस दिन क्यों कहा था, आफ्टर लुकिंग एट द आईओ he will not be able to do anything। उसका ये जनरल स्टेटमेंट नहीं था या जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं था कि इस आदमी को कुछ नहीं आता। ऑब्जर्वेशन जब मैं शक्ल देख के बता सकता हूं कि जो केस है उसमें ये कुछ नहीं कर पाएगा, आपके एसपी को इतनी भी अकल नहीं थी। वो कहाँ धारताल थाने कहाँ का है, वहां पे टीआई कोई पोस्टर नहीं है, चेंज हो गया है सर, इन्वेस्टिगेशन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चेंज हो गया है सर। मैडम, वहां पे कोई टीआई भी पोस्टर नहीं था, और टीआई को छोड़ के आपने एक सबऑर्डिनेट को दिया। This is the seriousness which you are showing to the to the case. चार्ज एक्चुअली सर उस समय He was in charge, yes. Now when he has been posted. अच्छा मैडम एक चीज बताइए, एक और क्वेश्चन है। Can't you hand over the investigation to a police officer who is not posted in that particular police station? कर सकते हैं सर। You can. Even if there is some legal difficulty, why can't you transfer that person to that particular police station? एसपी के हाथ में है ना मैडम, ना तो आपको ढंग का आदमी मिलता है, ना आपको वहां पे ट्रांसफर करने की जरूरत है। आम आदमी मर रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है। दिस इज द एटीट्यूड। 2 आदमी मरे ना मैडम, डेड बॉडी पूरी साबुत मिली क्या? आप लोगों को तो कोई तरफ तकलीफ नहीं आती उस परिवार को देखते हुए कि जिसने अपने परिवार के एक आदमी का हाथ देखा होगा। ये एटीट्यूड है ना पुलिस डिपार्टमेंट का। So why I should keep him behind the bar? That is the only question. Do whatever you want, I'm least bothered. सर इन्वेस्टिगेशन ट्राइंग एक्चुअली Fine, madam, I will record your statement. कि सब कुछ नहीं किया हम लोगों ने, only it was you woke up only after the alarming bell was given by the court, और अभी भी चिट्ठियां लिख के आप लोग खुश हैं। मैडम आप लोग तो आधी रात को लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं उठाने। सुबह 5 बजे घंटी बजती, बोले पुलिस आई है चल, करते हैं ना? सोसाइटी अरे मैडम करते हैं ना? सोसाइटी ओनली सर, नॉट हाँ, पर्सनल रीजन, तो केस ओनली फॉर द केस। सर। और यहाँ जो 2 आदमी मर गए जिनके पर वी आर फाइटिंग विद दिस केस ओनली। फाइन मैडम, जिन आदमियों को अपने जिन परिवार वालों को अपने डेड बॉडीज, अपने परिवार के डेड बॉडीज भी नहीं मिल पाई, उसके लिए चिट्ठियां चल रही हैं। इट्स नॉट ट्रू मैडम चिट्ठियां चल रही हैं, आप लोगों को डायरी खोल के देखनी नहीं है। सर। आई माई सेल्फ विजिटेड आमना एयरफोर्स स्टेशन एंड जस्ट मैडम घूमने के लिए बहुत अच्छा है, अभी तो एक आदमी दुबई भी गया हुआ है मैडम, चले जाइए। दे आर प्रोवाइडिंग यू फुल अपॉर्चुनिटी। आके लिख दीजिएगा हम पूरा घूम के आए, बुर्ज खलीफा भी देखा, ये भी देखा, नहीं मिला, वापस आ जाइएगा। डोंट से एनीथिंग कि हम यहाँ गए थे, वो आपके तो आप गए जा नहीं पाए। सर विजिटेड दैट टीम पूरा गया था सर। क्या किया मैडम उसकी टीम ने? सर वहां जाकर एक चिट्ठी लेके आ गए। नहीं सर, एक्चुअली आप
मैडम अनफॉर्चुनेटली आप ऐसी कोर्ट में है जिसको एम्युनिशन के बारे में, आर्म्स एंड एम्युनिशन के बारे में I know that. क्या क्या पता है आपको? You have a good knowledge of everything. भूल जाइए, हम लोग पैदा ही हुए हैं। माय बर्थ प्लेस इज, मैडम माय बर्थ प्लेस इज द हॉस्पिटल ऑफ OFK कमरिया। So then you must be aware, sir, कि I am aware of each and everything I am telling you. Sir, so that is the problem actually, Madam, the problem is the senior officers. Tell me why he should be written behind the bars. मैडम आप बताइए, वो तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मुझे शौक नहीं है किसी भी सीनियर ऑफिसर को बुलाने का। Whenever I find that the public prosecutor is not in a position to answer anything, then only I ask the senior officers to know. So I feel that Sultan and Paim are very good friends. That's why they are running this type of business, kabadi business, and they are running this business since 2002. His forefather was doing the same task, and we have a treaty that shows that they have a bonding, common consciousness. And again, sir, ki Sultan is not entitled to give this treaty to other one. Like ये काम वो किसी और को देने के लिए entitled. What about that OFK? Sir, What about that? खरे साहब को he would even agree to my observation कि जब when he was arguing the bail application for the first time, the first bail application, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था, how you could have assigned your contract to the third person, मैंने सुना था and then he pointed out that provision. तभी मैं पढ़ी थी सर उसको आप। तभी पढ़े थे, यही तो प्रॉब्लम है मैडम। लेकिन सर फिर भी आपके कहने से एटलीस्ट हमने देखा उसको। ना छोड़िए, क्या करना है आप? Sir, I'm concerned with this case. I can seriously say that. No, you woke up only after the court took a serious note of that. So whether you are concerned or the court is concerned, Both are concerned because the question of don't give a certificate to yourself. Sorry, sir. But I'm seriously trying to investigate. Now you are seriously trying. तो interim bill दे देते हैं 2 महीने की, उसको 2 महीने के बाद लगा देते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि अगर कुछ incriminating आता है, requiring that he should go behind the bars, so खारिज कर दे। I see, sir. हैं? Custodial interrogation में क्या चाहिए? और आप ये कहें कि there is a possibility that he will manipulate the things. तो possibility के लिए sentence मत बोलिएगा, tell me the reasons behind that. So my only submission is कि explosive case में no question of license or any type of permission. So I think. बहुत अच्छी बात है मैडम, अभी आपने हमको क्लास 15 पढ़वा रहे थे, हम तो डिटेल में लिखने वाले हैं सारी चीजें। This is the attitude of the Jabalpur police. That is the difficulty. Sir. हमको हमारे यहाँ बोलने से पहले सोचना नहीं है। और मैडम ये जो है, government will not be responsible for either guarding or preventing the removal of scrap by unauthorized persons from the range area. आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के हाथ की उंगलियां उड़ जाती हैं, कईयों की डेथ हो जाती है, फाइन। They are the intruders, they are not supposed to enter in that firing area. How this clause will apply? It will be the contractor's own responsibility to prevent others from doing so. However, the government will not remove metal scrap or fired ammunition from the range. How this clause would apply? इतनी सीरियस है पुलिस मैडम, ये खुद ही एडमिट कर रही है कि सर कोर्ट जब बोलती तब हमको पता चलता है। सर गाइडेंस तो अच्छा है सर, गाइडेंस तो सर ठीक ही रहता है। गाइडेंस मैडम आपको गाइडेंस देना है, आप हमसे ले रहे हैं। और अगर अनिल खरे साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जब आप पुलिस को बता रहे हैं कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन करो तो हम खारिज कर देंगे, तो सर प्लीज रिक्यूज योरसेल्फ। तो मैं इनके इस स्टेटमेंट को कैसे कहूंगा कि आप अनरीजनेबल बात कर रहे हैं? बस इतना सा बता दीजिए और कुछ नहीं। बड़े मजे की बात है, आप कोर्ट से गाइडेंस ले रहे हैं हाउ टू इन्वेस्टिगेट। यार वो डिटेल्स लिख लीजिएगा कौन कौन है। I will pass a detailed order. This will be another feather in your cap. I approve this case. And Do my best, sir. I am not doubting your ability.
The anxiety is that unless and until the court makes you to work, you people are not interested in the maintenance of law and order. पेपरों में वो भी हमने बंद कराए थे सर इन लोगों के। अरे सर हमने बंद कराए थे, नहीं तो हर रोज जो है एसपी बैठ जाता था एक अक्यूज को साथ लेके, हमने ऐसा कर दिया। आपके से there are number of things which हैं? आपकी वजह से there are number of things which are सवाल वो नहीं है सर। सरकारी वकील हमेशा यही कहता है एनआईए एनएसजी एनआईए एनएसजी, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं। sir, I'll just give an example. Not for this case. Yesterday I was arguing. Identically situated 4 persons, they were enlarged on bail. Exactly the same. इतना irrigation था। ये घटना हो गई, उसके बाद those people went to his place and said कि लाश को जल्दी जला। इनसे तो उनके खिलाफ 4 लोगों की बेल हो गई। कल उसमें एक बिल्कुल स्पेशल एफर्ट हुआ, उसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, डिप्टी एडवोकेट जनरल, माय फ्रेंड वाज प्रेजेंट। आना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे ये समझ में नहीं आया आज क्या स्पेशल हो गया। स्पेशल कुछ और था। सर देखिए Why it should? सर देखिए, बिहाइंड द कर्टेन्स इन बिटवीन द लाइंस पे हम जाते नहीं। हम जाते पता कब है सर? जब क्रिमिनल अपील डिसाइड करते हैं, when everything is on the record, where I have a full liberty, full opportunity and full jurisdiction to interpret the situation in a particular manner. Abhi it is too early for me to give any finding. My only anxiety was that if they are not serious, why a person should be kept behind the bars? That is all. अब इन्होंने खुद बोल दिया कि सब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर सीरियस तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए वो एक लाइन सिर्फ आपके लिए अपना पहले पढ़ चुका हूँ। इट इज नॉट द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट इट मुझे मालूम है सर। बेसिकली दिस इज देयर कंटेंशन। नाउ टुडे व्हाट सीरियसनेस इज कमिंग आउट। अरे ठीक है ना सर, मैं अच्छा खरे साहब आप बताइए, क्या मैं प्रोसिक्यूशन से कह सकता हूँ कि तुम आप सीरियसली अपोज क्यों कर रहे हो? मैं ये तो कह सकता हूँ कि गड़बड़ क्या है भैया, चुपचाप क्यों खड़े हो? मैं तो वो समय भूल गया हूँ जब यहाँ से कोई खड़ा होकर बोलता था कि डोंट रिकॉर्ड माय कंसेशन, बट इट इज द केस ऑफ सर आप हम आई हैव माय लॉर्ड हैज मेड दिस स्टेट पर इसकी My starting- dad it should be- say that I have done that. सर सवाल वो नहीं है, दैट सवाल वो नहीं है, नथिंग सवाल सर। दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड। सवाल वो नहीं है सर। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, देन सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स मे कम। इन्वेस्टिगेशन के दौरान nobody can make a statement that there is nothing. उस दिन की स्थिति तो आप कह सकते हैं ना कि आज की तारीख तक कुछ नहीं, स्टिल वी आर स्टिल गोइंग विद द कोई गलत बात, कोई गलत इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर चार्जशीट हो जाए, देन यस अ लॉयर कैन मेक अ स्टेटमेंट साहब इसके अलावा कुछ नहीं है। आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट दोस केसेस वेयर द इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट, द चालान हैज बीन फाइल्ड। वो जब आएगा तब देखें, जब आएगा। ये हमको हमेशा ही कहते था ना एनआईए एनएसजी, हमने देख रहा हूँ सर कि मेमोरेंडम पे कन्फेशन की बहस होती पूरी की पूरी, और वही बहस होती है आजकल जो ज्यादा देख रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नो कमेंट सर। For myself, We I can would say say that, sir. sir, for myself, I जिस दिन हम एडमिट, जिस दिन हम रिलाई करें उस दिन जरूर कहिएगा। आपकी तरह हम कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं ले रहे। एक्चुअली ये जब बार बार ये स्टार्ट करते हैं एनआईए और एनएसजी, तो मुझे ये लगा कि जब इतना सीरियस है तो जबलपुर पुलिस सो क्यों रही? तो आज तो एडमिट भी हो गया कि हाँ, अब क्या करोगे उसके बाद? तो फिर क्या करें, हम किस आदमी को जेल में क्यों रखें? या तो ये कहें, मेक अ स्टेटमेंट कि सर इट वाज अ डेलिबरेट बॉम्ब ब्लास्ट बाय अ पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर ये कहेंगे तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है देन हाउ कैन यू कोरिलेट दिस पर्सन विद द पर्सन इन हुज प्रीमाइसेस द बॉम्ब ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस? अरे मैं कहता जब ये कहते तब मैं कहता हूँ। अब जब अभी तक इनका यही है कि सब क्या हुआ, तो हम क्या करें?